Okay. Sadhguru, your thoughts, I would say, or I could say your answers about the questions on pregnancy, or whether your thoughts on like what it means for women to bear children or not bear children and the choice thereof was a beautiful answer. I could Please relate to everything just come that to you're the saying. question. Time is very. The context is slightly necessary. I'll keep it short. And your answer about rapes and increasing cases of rapes, or them being sort of a social crime, but also there's an association of pride, etc. That was a question. And both the answers in and of themselves were honest answers, but together... Hari, this is not a commentary, just come to the question. But together, is it possible that there was, in your two answers, perhaps unconscious bias or double standard? Because in the answer to pregnancy, you said, oh, it is just your primal instinct, your biological need for an identity to care about a certain person, you should grow beyond it. And in your answer about rape, you said, oh, humans have this hormonal urge, and we are not... I know what I have said, why don't you just ask the question? So the question is... I know what I have said. Just come to the question. Is it possible that in these two answers there is perhaps a subconscious bias, or am I reading it wrong? Those two answers to me seem like, right. Oh, this is biological, let it go. Oh, this is biological, it won't go. I think you've made your point, so let's hear the answer. Oh. Let's understand this. The hormonal impact on human biology is such, it subjugates one's intellect, subjugates one's knowledge, subjugates social order and acts beyond that. Is that the way to create a society? No. The whole idea of creating a society is that all these things will fall into a more graceful slots so that they will function smoothly to everybody's benefit, not against anybody. That's the whole idea of trying to bring a civilization to a society is just that, that's the effort. Have we ever, in these whatever thousands of years, have we ever succeeded 100% in this effort? Have we? No. At certain times, these things have been well handled, at certain times they've been badly handled. Only thing we can do is, how well can we handle it in our time? That's all there is in our hands. You're thinking of these things as some sort of absolutes. These are not absolutes. Don't think there is a man who is a rapist and there's a man who is no rapist. It's not like that. It's just that when he goes out of control, he will do ugly things. When he's in control, he behaves well. When he's in love, he behaves well. When he is joyful, he behaves well. When he gets frustrated, he behaves horribly. This is the nature of the human being. If you think it needs my endorsement or not, then you're living in some la-la land. This is the nature of the human being. इसमें अब क्या बोलना चाहते हैं? आप satisfied हैं इस आंसर से या not satisfied? ये simple हम लोगों को लग रहा है कि ये बेवकूफ़ी हो रहा है इस आंसर में, क्योंकि आप देखिए ये आदमी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक से दूसरे को। और मुझे एक तरह से लगता है, देखिए मैं बायस नहीं हूँ, और मुझे एक तरह से लगता है कि देखिए जो देश से आ रहा है, कुछ ने ये एक डिस्क्रिप्शन लिया है, एक गांव से आया है आदमी, वो आ रहा है सिटी में, देख रहा है पोर्नोग्राफी और उसका दिमाग ख़राब हो रहा है, और लड़की लोग कम कपड़े लाएगा और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। ठीक है, उसको अगर योगी जी वाला एग्जांपल नहीं सेट किया जाएगा, मान लीजिए आप योगी जी वाला एग्जांपल नहीं सेट कर रहे हैं, तो दूसरा 10-12 भी आएगा ना, है ना। अब माफिया को मारने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि माफिया जो लगे हुए हैं अभी, उसको कंट्रोल करने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है तो अच्छा ही आदमी है वो, है ना। ऐसा तो नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है तो उसको डंडी लगाना पड़ेगा। जब ये एग्जांपल सेट नहीं होगा आदमी, हम लोग के उधर ही था, आपको मैं बताता हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि आदमी को डर होना चाहिए, फियर होना ही चाहिए, फियर नहीं होने से नहीं होगा, ये हम लोग को रखना चाहिए। लॉ मुझे लगता है लॉ कुछ काम करता है। हम लोग का क्या था सिस्टम, मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग उधर चोरी होता था, ठीक है,
चोरी होता था, बार बार होने लगा। अब वहाँ पर गरीबी तो है भाई, है ना। इसका मतलब सब तो चोर नहीं हो जाएगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो चोरी कर लेगा वो सबके घर में जाके। मेहनत करो, बहुत सारे आदमी मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, है ना, या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, अब तुम चोरी करोगे। तो इसमें हम लोग के गांव के आदमी लोगों ने ना लॉ को, हम लोग तो उस समय कुछ मानते होते नहीं थे ये सब चीज़। मैं छोटा जब था, मैंने खुद एग्जाम्पल में देखा कि उस चोर को पकड़ा है और जागते रहो बोल के हम लोग, मुझे अभी भी याद है कि इस तरह से हम लोग के गाँव के आदमी ने एक स्टेप लिया। एक ग्रुप बनता था, हम लोग के हर घर से 4 या 5 आदमी निकल के जाते थे और रात के टाइम में पेट्रोलिंग करते थे। पुलिस के कोई कंट्रोल नहीं था, गांव के आदमी लोग जाके उसको पकड़ा गया है 1 या 2 चोर, वो ऐसा चोर को ना पूरा ज़मीन में बांध दिया, जैसे खुट्टी से बांधते हैं ना जैसे गाय को, उस तरह से बांध के उसको धड़ाधड़ धुलाई, ये धड़ाधड़ धुलाई दिया जाता था, एक धड़ाधड़ धुलाई दिया जाता था। ऐसा धुलाई उसने खाया, उसके बाद ज़िंदगी में उसने चोरी कभी नहीं की। वो रिक्शा वाला बन गया, बाद में रिक्शा चलाता था। धुलाई बहुत खाया था, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा धुलाई उसके लाइफ में कभी, ऐसा धुलाई खाया था कि उसका जेनेटिक का जीन होता है ना, वो चेंज हो गया था। तो ये एग्जाम्पल होना चाहिए। किसी को भी तुम रेप करके काट के कहीं भी फेंक दोगे और तुम्हारे साथ हम कंपैशन लेके बैठे, कंपैशन का गीत गाया नहीं, ऐसा सैंपल होना चाहिए कि आप अगर ऐसा कुछ गलती कर रहे हो तो ऐसा सैंपल सेट करना चाहिए कि रेप के बारे में सोचने से भी आदमी 10 बार डर जाए। ठीक है, वो खड़ा ही नहीं होगा। वो इंसिडेंट का आप लोग वायरल करना चाहते हो तो ऐसा इंसिडेंट जिससे पनिशमेंट हुआ, जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी सबसे बेस्ट हो रहा है जो योगी जी के रूल में हो रहा है, यूपी के रूल में। जो क्राइम, इतना क्राइम किए वहाँ पे लोग, वो इस तरह से जब मर जाता है ना मीडिया के सामने, बात समझिए कि ये बहुत गलत। ये ऐसा मैसेज देता है कि दूसरा माफिया पे डरा, जिससे दूसरा अंसारी है वो किस तरह से डरा हुआ है। सारा माफिया को पैंट में जो टॉयलेट निकल जाता है ना, तब होता है एक्चुअली, माने एक देश को प्रोग्रेस करने के लिए अच्छा एक रास्ता मिलता है। और दूसरा इंकरेजमेंट नहीं लेगा, ये रास्ता सही है, इसमें आसानी से पैसा कमा सकता है और आसानी से हम लोग लॉ को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होना चाहिए कि माफिया कंट्रोल कर रहा है सारा पुलिस को, तो जनता क्या जस्टिस पाएगा, है ना। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अभी इसमें देखिए गुरुजी जो है वो इंटरनली इमोशनली ज़्यादा आंसर देते हैं, ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप डायरेक्ट नहीं जाए, उनका मतलब ये है, कड़क से कड़क भी जवाब देते हैं। और अभी इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग, ये लड़का क्या नहीं समझ पा रहा है ना, हम लोग उसको देखते हैं, इसको ब्रिज गैप करते हैं। ठीक है, अभी ये कॉन्टेक्स्ट क्या था कि पूछा गया था कि रेप हो रहा है, इसके बारे में क्या किया जाए। गुरुजी का एक्चुअल माने ये था कि पहले जो सोसाइटी में और कल्चर में होता था, हम लोग फिक्स कर देते थे इसके साथ शादी होगा, उसके साथ शादी होगा। ठीक है, तो आप एक इमोशनल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इमोशनल अटैचमेंट का मतलब क्या होता है। हम लोग जो डॉर्मेट्री में पढ़ते थे, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मेरा एक रूममेट था, वो जब इंडिया से इधर आया विदेश में, तो उसको उससे बहुत गहरा प्यार था। वो माने 60 अब क्या बोलो 600 700 रुपये का कॉल करता था हर दिन। वैसा एक दूसरा भी था, बांग्लादेश का लड़का। तो ये लोग माने डीपली इमोशनली अटैच थे। और बाहर के जो लड़के लोग जिसमें ये नहीं था ना, तो वो लोग इधर उधर लड़की गर्लफ्रेंड बनाते उधर घूरते रहते थे। उसका क्या था ना, एक इमोशनली उस लड़की के साथ फिक्स था कि मैं इसी से शादी करूँगा वापस आके। वो शादी जाके किया भी वापस जाके, है ना, क्योंकि वो बात करता रहता था, इमोशनली अटैच था उससे। ठीक है, तो ये इंडिया में बहुत पहले से हो जाता था। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो अगर बाहर भी जाएगा या फिर कुछ भी करने जाएगा तो उसको उस तरफ ध्यान उसका ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसका फिक्स हो गया इस तरफ। ठीक है, इमोशनली अटैच, यही कहने का मतलब, गुरुजी का कहने का मतलब, अगर इमोशनली अटैच्ड है, अगर माँ बाप ने उनको बता दें इस लड़की के साथ शादी होना है, तुम्हारा फिक्स हो गया है ना, तो उस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, सोसाइटी ने किस तरह से फिक्स किया था ये सब प्रॉब्लम को।
हमारे पिछले जमाने वाले आदमी लोग बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे, उन लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। अभी बोल रहे बाल विवाह कर दे रहा, ये कर दे रहा, वो कर दे रहा, अभी ज़्यादा जानकार हो गए तो किस तरह से कंट्रोल करोगे? एक अर्ज होता है, एक डिज़ायर होता है, क्योंकि उस समय जब वो डिज़ायर होता है तो वो क्या करेगा, जल्दी से कुछ गड़बड़ी करेगा, है ना, इधर उधर करेगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं या फिर शादी उसी एज में करते हैं, जैसे 18-22 का जो लीगल एज है उस एज में करते हैं, उस एज में कौन कर पाता है आजकल शादी? आप देख लिए, है ना, जितना भी मेल है 30, 40, 45 तो मिनिमम हो जा रहा है, 40-50 तो ज़्यादा कॉमन हो रहा है। फीमेल का एज क्या होता है कि उसका हार्मोनल रेंज में अगर देखा जाए तो 25-24 से बेस्ट टाइम है शादी करने का। तो अभी पढ़ाई का ये हो रहा है। तो गांव में जो होता था वो 1 to 1 एक्सटेंड बहुत अच्छा चीज़ होता, वो नेचुरल साइकिल से काम करता था। तो 18 को लीगल एज बनाने का यही मतलब होता है कि 18 के साथ साथ उनको एक ऑप्शन हो जाना चाहिए कि अब शादी का समय आ गया, ठीक है। तो ये गुरु जी का कहने का मतलब जो लास्ट ओल्डर जनरेशन किया बहुत अच्छा किया, ठीक है, ये करके। अभी इसका सोल्यूशन लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक है। ये भी कुछ हद तक अब क्या बोले, है ना, आप रेप करने से तो अच्छा है ना। अब गर्लफ्रेंड बनाया, रिलेशन में लिव कर रहे हो, या फिर बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ रहे हैं। अब जैसे विदेश में देश में देखा जाए तो उसमें उन लोगों को मास्टरबेशन मशीन दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये सब चीज़ में होता है फीमेल को होता है, ठीक है। एसटीडी से रिलेटेड नहीं, बच्चा हो जाने से, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बहुत से बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा उसको, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बिकम्स मेजर रोल। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा रोल ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सभी औरत लोगों को ही पता होना पड़ेगा, और उन लोगों को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन माने सेक्स हो गया उसके बाद भी आप कॉन्ट्रासेप्शन ले सकते हैं। तो ये सब में आपको बहुत ही जानकारी रहना पड़ेगा, ठीक है। और जितना हम लोग वाइड स्प्रेड कर देते हैं कॉन्ट्रासेप्शन ना, तो फीमेल मेल की तरह हो जाएगी, माने उसको ये टेंशन नहीं रहेगा मुझे बच्चा लेके दौड़ना पड़ेगा, समझे ना। बच्चा हो जाने के बाद इमोशनली वो सोच नहीं पाती क्या करना है, कैसे करना है। तो कॉन्ट्रासेप्शन बिकम्स अ मस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है ना, कुछ हद तक फ्री। अभी एक मूवी बना था, ये रकुल प्रीत उसमें एक्ट कर रही है, कॉन्डम से रिलेटेड है। कॉन्डम लगाइए, नहीं तो मेरे साथ मत सोइए, ठीक है। क्योंकि पति हो जाने के बाद क्या होता है, वो कि लीगल लाइसेंस लेके बैठ रहा है दिन रात भी करने का, है ना। उसको करना है, कॉन्डम लगा करें। आप मज़े के लिए कर रहे हो, मज़े के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरा तो लाइफ ये होगा ना, मेरे को 3-4 हज़ार बच्चा कैसे देखोगे। और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम लोग को बच्चा ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ही ज़्यादा है सबसे सफिशिएंट। अगर आप बच्चे का ज़्यादा शौक रहते ज़्यादा बेस्ट इज एडॉप्शन एक्चुअली, हाँ। अब यहाँ पर तो एडॉप्शन हो नहीं पाता, हम लोगों ने इंक्वायर किया तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर। तो एडॉप्शन जो है मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप किसी बच्चे के पास जो होप नहीं है उसको आप होप दे रहे हो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट थिंग है। तो गुरुजी ने ये भी कहा कि जितना भी आई फर्टिलिटी क्लिनिक है उसको सब हटाओ, गोली मारो, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज़ नहीं है, हम लोग टाइगर नहीं है, उसको बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रीड करना। हम लोग इतना पॉपुलेशन हो गया है कि अब उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कहीं पर भी जगह नहीं। आप कहीं भी जाइए, मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको लाइन इतना लगना पड़ रहा है। तो जेन्युइनली हम लोगों को देखना चाहिए, है ना, इसके बारे में देखना चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर यही सोचेगा कि जितना पॉपुलेशन होगा आदमी काम करेगा, टैक्स का पैसा मिलेगा, उससे कंट्री डेवलप होगा, नंबर 1 हो जाएगा। अरे नंबर 1 हो जाएगा, आप थोड़ा नेचर के बारे में भी सोचिए। सब्सिडाइज करना चाहिए जो भी फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन ले लिए, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन ले लिए, या फिर जो भी मेल है ना वैसेक्टोमी ले रहा है, उन लोगों को सब्सिडीज देना चाहिए। गवर्नमेंट अगर ये कर दिया जैसे कि महीने में 10,000 या फिर 2 लाख का सब्सिडी एक ही बार में, ये 2 लाख रुपए मिलेगा जो भी वैसेक्टोमी कर रहा है, तो
ये अप्रोच अच्छा रहेगा। लेकिन अभी क्या है, कंपटीशन है, ये देश मेरे से ज़्यादा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करना यार। पॉपुलेशन में कभी कम्पीट मत करो, पॉपुलेशन जितना कम है वो बेटर है। Are we going to create a system where there is going to be minimum friction among people is the continuous challenge for every generation. Yes? It is a continuous challenge for every generation. No generation has ever arrived at one perfect system that it worked absolutely for everybody. Always somebody was exploited. If you don't know the reality of the existence and you're living in some other psychological state of absoluteness, then that's not the point. But pregnancy is a choice. And especially now it's I wouldn't have said it's a choice 100 years ago, because it just happened. Just the hormonal thing happened. But pregnancy is a choice. Even if you're sexually involved, still you don't have to get pregnant, that is possible only for this generation. If you do not understand the impact of that, that is the biggest thing that's happened. For women, that's the biggest thing that's happened. That is, there is birth control, that one can exercise their choice whether I want to go into it or not go into it. So, that is of a different kind, this is of a different kind. That's why I said, if you want to bring both of them in one category, you come to me, I will initiate you into brahmacharya, I'll give you sadhana, you do that, both will be by choice. Red shirt up there. Thank you so much for coming here. I just wanted to ask you about how we can contribute back to society and give back, because everyone keeps talking about contributing and contribution, but it's really hard for each person to come up, and just want to hear your thoughts on it. See, when I talk about giving back something to you, that means I have stolen something from you already. Please don't do that. If you don't do the first act, the second act will not be necessary. As a part of this, सो ये दूसरा क्वेश्चन में जा रहा है, उसको शॉर्टली आंसर किया गया था। ये लड़के का डिबेट के क्वेश्चन को, मैं डिबेट के क्वेश्चन को भी एक्सप्रेस करूँगा। हम लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, प्रेगनेंसी और कॉन्ट्रासेप्शन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यही है हम लोग, मैं बार बार यही बोलता रहूँगा हर वीडियो में कि आइंस्टाइन आए हुए हैं, हम लोग पूछ रहे हैं 5+5 कितना होगा। ठीक है, क्या बोलो, बहुत कम आदमी के पास ये इंसाइट है कि समझ ले कि कौन आया हुआ है यहाँ पर, कौन बोल रहा है। ठीक है, ऐसा आदमी जो मर्क्यूरी में लाइफ डाल दे वो बोल रहा है। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा इलॉजिकल, लेकिन 100 साल बाद जब रियलाइज़ होगा तब आदमी को बेवकूफ़ी का पता चलेगा। अभी आप लोग रिमाइंड कर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़, क्योंकि देखिए आप सेंसिटिव नहीं हैं, इसीलिए आप समझना चाहते हैं इस चीज़ को। अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा ना, जब आप खुद महसूस करना शुरू कर देंगे तब आपको कोई सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हेलुसिनेशन नहीं है। ठीक है, आप अगर ध्यानलिंगा में घुस जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आप गायब हो सकते हैं 3-4 घंटे के लिए, आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। जिस दिन आप वो एक्सपीरियंस कर लेंगे, एक बार एक्सटेसी का ट्रिप हो गया आपकी आँख में, तब आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और इन लोगों को पूछे कि रेप कैसे कंट्रोल करना, ये करें, तो डेफिनेटली आप देखिए, ये हमारे लिए आके आंसर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये बस वो एंटरटेन कर रहे हैं, वो मेनली आए हैं कॉन्सिक्रेशन करने के लिए, बस मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, वो जगह जगह को कॉन्सिक्रेट करके ही जाएंगे। और यही एक ऐसा चीज़ है जो रहेगा सालों साल, क्योंकि उन्होंने जो बोला हर आदमी क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट ही करेंगे। ह्यूमन माइंड, हम लोग का माइंड ऐसा है कि फुल ऑफ क्वेश्चन है। अगर भगवान सही में आपके आगे तो उनको भी 1000 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये सही, बिल्कुल सही लगता है मुझे। और देखिए, अब मैं बिलिटल नहीं कर रहा हूँ इस लड़के के क्वेश्चन को, मुझे समझ में आ रहा है ये किस सेंस से बोल रहा होगा, किस सेंस से पूछ रहा होगा, लेकिन ये बेवकूफ़ी है भाई।
तू खुद जाके वेस्टेक्टोमी करवा ले, ठीक है, और तू खुद अच्छा आदमी बन जा, बस हो गया, है ना। हम लोग को समझना चाहिए ना हमारे आगे कौन आदमी बैठा हुआ और हम लोग क्या किस तरह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ना, ये थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। देखिए सब लोग रेस्पेक्टिवली बात करें, साइंटिस्ट लोग रेस्पेक्ट, ये पता नहीं कहाँ का ड्रॉप आउट तो नहीं होगा, ये स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में है तो, हाँ हार्वर्ड में है तो पढ़ा लिखा ही होगा। एनीवेज, तो इसको भी डिफेम नहीं करना है हम लोग को, बस वो देखना है कि हम लोग कितना शॉर्ट साइडेड हैं और हम लोग किस हीरे को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो यही कह रहा था कि कॉन्सिक्रेशन का जो साइंस है, अगर हम लोग उसके विषय में ज़्यादा पूछते हैं, मुझे समझते कि क्या है और किस तरह से एक स्पेस को हम लोग एनर्जी के लिए चार्ज कर सकते हैं ताकि वो ह्यूमन वेलबींग के लिए अच्छा हो और प्लस वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाएगा। गुरुजी का ये कहना है कि नो वन शुड लिव इन नॉन कॉन्सिक्रेटेड स्पेस, ठीक है। तो ये अगर आके इस तरह से आंसर कर दे रहे हैं हम लोग का क्वेश्चन, जो छोटा मोटा क्वेश्चन, देखिए क्योंकि देखिए जिसको अपना ज्ञान होता है ना, ये सब क्वेश्चन कोई कैसा भी आप क्वेश्चन पूछिए वो मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज दैट कैन बी इजीली आंसर्ड, ठीक है। जो अंदर में झांक के देख लिया है वो सब आंसर क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, क्योंकि उसको माइंड का अंडरस्टैंडिंग रहता है, माइंड का लिमिटेशन के बारे में पता रहता है, ठीक है। और कितना लिमिटेड है हमारा माइंड, वो अगर आपको पता चल गया तो देन देयर इज़ नो अदर क्वेश्चंस। सो हम यहीं पे बंद करते हैं।